call Miss Kalpana Dhoot and Jay Dhoot on stage for an interview with Kalpana ma'am. Good morning, parents. Good morning. All right. So एक कॉमन ग्रीट है जो हम स्टार किड्स में यूज करते हैं. जनरली आप इंग्लिश ग्रीट्स देखेंगे दूसरे स्कूल्स में. हम लोग जो ग्रीट यूज करते हैं दैट इज जय सिया राम. सो आई वांट यू टू अगेन से विथ मी जय सिया राम. Great, 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 guys. I want the same energy throughout the show. I hope you have had a healthy breakfast, right? अगर आपने SOPs देखे होंगे तो आप 3 घंटे मुझे आपकी तालियों की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हमारी डायरेक्टर मैम कल्पना मैम से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और स्टार किड्स क्यों यूनिक है. स्टार किड्स में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूल से डिफरेंशिएट कर पाता है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू. तो मैम मैंने सुना है कि आपने जो टीचिंग वाली चीज है वो अपनी 7th ग्रेड से शुरू कर दी थी, राइट? तो मैम वो जर्नी से आपको ये कब लगा कि मुझे स्कूल खोलना चाहिए, ये आइडिया आपको कब आया? गुड मॉर्निंग टू माई पेरेंट्स. लाइक माई सेल्फ कल्पना. Jay Dhoot पूछ रहे हैं कि 7th standard से I started my journey. That was like when I was also in a 7th standard. That time I used to think उस समय study was not the important thing. For me that time was कि मुझे कुछ earn करना है अपने लिए. कुछ parents को I should help my parents कि उनको ऐसा लगे कि हाँ she is like ना earning herself, अपना खर्चा खुद निकाल रही है, right? That time I still just started and that time last 35 years back I used to get 50 rupees for a single child. I used to teach the students below me. That was, I was in 7th standard and the students used to be in 5th or 6th standard. So for me it was really to get 50 rupees, then I turn up it to 250 rupees, 250 rupees. So again it was very good. Yeah, that means you started it as a pocket money का जो income होता है, right? That was a pocket money. Rather than asking to the parents, आपने खुद से उस चीज को implement करना. When I got married last 24 years back, the first question for my in-laws was there, and especially I'll talk my father-in-law. For me, he is my mentor. He said me कि कल्पना तुम्हें कुछ करना है. This was a very good opportunity for me. कि अगर मुझे पूछ रहे हैं, I am a daughter-in-law, और मुझे मेरे father-in-law पूछ रहे हैं कि अगर कल्पना तुम्हें कुछ करना है, तो for me that was the best part. I said I can go for the teaching part if the family allows me. But honestly speaking, the backbone, the support of my family, that encouraged me to do something. Then I started my career with a school, and that time I was earning 1100 rupees, and then the journey started from last 24 years. And one more thing, here some few parents are there जिनके बच्चे मेरे पास स्कूल में आ रहे हैं, and I think Abhishek must be sitting here, and yes Abhishek, you're there. Yeah, he was my student when I started my career, and अभी उनकी बेटी मेरे पास आ रही है, तो that is a big encouragement for me. तो मैम जो आपकी इनिशियल जर्नी रही, आपने बताया कि 7 से आपने स्टार्ट किया. मैंने सुना कि आप टाइनी टॉट्स स्कूल में गए, आप बहुत डिफरेंट स्कूल्स में गए. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपका विजन होना चाहिए, राइट? आप क्या ऐसा देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, आप क्या ऐसा देना चाहते हैं अपने करिकुलम में, अपने टीचर्स में. तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि आपने स्टार किड्स को दूसरे स्कूल्स के कंपैरिजन में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे स्टार किड्स कैसे यूनिक है. Before starting my Star Kids school, I was gone with the 2 schools. Although I was, again I'll say, I was a tuition teacher running with different schools, students of different big schools I should say. When I started in Manoj Public School, there what I saw was there, the teamwork of the teachers was not there. So this was the negative point कि जब तक teacher का teamwork नहीं है, we cannot give the result. Ultimately we have to deal with the kids. Again when I came to Tiny Tots, the same thing I faced. I have a talent. I have the I should say कि I was like very good at maths. So I just suggested ma'am कि मैम मैं maths पढ़ाऊँ बच्चों को. तो she said no, take English. I said ma'am I'm not very comfortable teaching Shakespeare. So she said okay. Then again what I found, there was like teachers ये नहीं चाहती थी कि मैम आपका रिजल्ट बेस्ट हो. They always wanted डायरेक्टर मैम के पास स्पेशल, हमारे पास स्पेशल बुक्स में हमारा नेम होना चाहिए. तो दे ऑलवेज थिंक
कि बच्चों से क्या मतलब है. We have to be very good in front of principal ma'am and the owner of the school. So that was again a very negative point to stay in a school. So when I started my school, first point was that teamwork of the students, and जो मुझे सबसे ज़्यादा impress कर रहा है मेरी स्कूल में, that is I am connected with 1-to-1 parent, 1-to-1 student, and I think majority grandfathers, grandmothers, बुआ, मासी, I know each and everyone. Am I right, parent? ग्रेट ग्रेट. तो ये चीज मैंने भी नोटिस की है. जैसे प्रद्युम्न सर ने आपको बताया कि जो हमारे कोरियोग्राफर सर है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एनुअल डे टिल द 14th एनुअल डे वो हमारे साथ है. राइट. अदिति मैम को आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे. शी गेव अ सरप्राइज एंड शी इज फॉर ओनली फॉर द एनुअल डे राइट नाउ. तो ये जो हमारा अटैचमेंट है टीचर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में भी रिफ्लेक्ट करता है. हम ये नहीं कि हम हमारी क्लास को बेटर करने की कोशिश करते हैं, रादर स्टार किड्स शायद ये प्रेफर करता है कि हमारा स्कूल हम एज अ फैमिली जीते, हम एज अ टीम लीड करें. राइट. तो दैट इज, एंड अगेन आई से यू जय, द स्टार किड्स इज विद द फैमिली. करेक्ट. द एंटायर पीपल सिटिंग नियर मी, they all are connected to me. Without them, Star Kids is not complete. Exactly. तो इसके लिए मैम मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप पेरेंट्स से भी 1-to-1 कनेक्टेड है. राइट. तो मैंने ये देखा कि जो आपका इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे आपने ये पोस्ट किया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए आपने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलाई. राइट. तो मैम ये क्या चीज है? मतलब मैं जब मेरे स्कूल में था तो हमारे क्लास में क्या होता था कि लेट्स से स्कूल का एक नॉर्मल डे है तो हमको ये पता होता था कि हमारा एक पीरियड इंग्लिश स्पोकन के लिए फिक्स होता था. बट ऑनेस्टली अगर मैं मेरी आउटकम बताऊं उसका, तो मेरे साथ ये था कि मैम कुछ नए 3-4 वर्ड्स हमें सिखा देती थी. लेट्स से मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई, बट आई वाज नॉट एबल टू इनकलकेट इन माय करंट लैंग्वेज. राइट. आई वाज नॉट एबल टू गेट इट कि यार मैम ने बताया ये वर्ड होता है, कुछ तो इसका मीनिंग होता है, अरे पर मैं यूज कहाँ करूं. राइट. तो आपने ये चीज रादर देन स्टूडेंट्स को जाते हुए आपने पेरेंट्स को क्यों टारगेट किया? Jay, this is again a very good question, and that I have learned from my experience itself. One, like he is my son. When he was in the school, I used to face many parents. They were not able to interact with the teachers. मतलब वहाँ उनको ये लगता था हम मैम से बात कैसे करें, हम इंग्लिश तो आती नहीं. हालांकि I should say हिंदी is a mother language. We should speak in Hindi, but at least हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि यार हम कहीं इंफीरियर हैं. सो इन द पैंडेमिक टाइम आई जस्ट वांटेड कि चलो हम कुछ नया करते हैं. तो आई थिंक हियर आल्सो मेनी पेरेंट्स आर सिटिंग विद मी एंड दे वर विद मी इन द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, एंड आई थिंक 25 पेरेंट्स वर देयर विद मी, एंड वन ऑफ माय पेरेंट शी इज वर्किंग इन स्टार किड्स. द बेसिक रीजन वाज दैट कि हम यहाँ तो बच्चों को बोलते हैं कि वॉशरूम के लिए जाओ, वी जस्ट से ओपन योर ड्रेस, बट घर में पेरेंट क्या बोलता है? डोंट माइंड इट पेरेंट, जस्ट व्हाट दे से. जल्दी से कपड़े खोलो, जल्दी से बैग को रखो, शूज खोलो, सॉक्स खोलो, यहाँ तक कि दे विल यूज मोजे खोलो, बाथरूम के लिए जाओ. तो व्हाट वी थिंक कि पेरेंट के साथ भी स्मॉल सेंटेंसेस के साथ हम अगर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू द चाइल्ड डेवलपमेंट. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई फील कि स्कूल में एक बच्चा जो है वो 30% of the time. I'll again say 24 hours the day is there. Right. Hardly the child stay here for 6 hours, or I should say the toddlers stay for 4 hours. After that, they are with the parents, with the grandparents. वो आज भी पता है क्या बोलते पेरेंट? सेब ले आना. I should say, बोलिए सेब, केला, everything. But parallelly, we should go with the English part also. Right. Again, one more time I'm saying English and Hindi. Hindi is a mother language, dear. So we should know. बट मुझे लगता है आज की जो डिमांड है, अ चाइल्ड शुड नो कि व्हाट हैज बीन टॉट टू मी एंड व्हाट हैव टू हियर फ्रॉम द टीचर, इट शुड बी वेरी क्लियर, एंड द सेम विद द पेरेंट्स आल्सो. बट पेरेंट्स शुड नॉट फील इंफीरियर इफ दे डोंट नो इंग्लिश. आके मैम से बात करें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है यू कैन सॉल्व इन हिंदी आल्सो. सो आई विल कंक्लूड यू बाय सेइंग मैम कि जो पेरेंट्स हैं दोज आर द फर्स्ट मेंटर्स. राइट. आपका बच्चा आपके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, एंड दिस इनिशियल इयर्स ऑफ योर पेरेंट टू स्टूडेंट बॉन्डिंग इज कि दैट इज व्हेन यू गेन मोस्ट ऑफ इट. राइट. आप लेट से उसकी जब ड्रेस ओपन करवा रहे हैं तो उससे नॉर्मली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैम आज आपने स्कूल में क्या किया. बी वेरी
In this again, I'll interrupt you, Jay. This is I should say, a parenting to all the parents. This is a message to a parent, because majority times in the PTM I used to say, and I'm one-to-one connected with the parent, especially mothers. I want when the child comes from the school, first question क्या होता है? Generally, आज मैम ने डांटा तो नहीं? आज मैम ने लंच तो कराया आपको? This question should not be asked. What I say, just ask the positive things. आज स्कूल में कितना मजा आया? आज मैम ने पढ़ाया कैसे? आज मैम ने तुमसे बात क्या करी? आज कौन इतना अच्छे से फ्रेंड से तुमने शेयर किया? Generally what happens, all people are I think married here. हम जब हमारे husbands आते हैं, तो we always ask whatever you call to your husbands, चाय बना दूं आपके लिए? आप ठंडा लेंगे या गरम? पानी लाऊं आपके लिए? क्या हम बच्चों को ये पूछते हैं? No. What we ask them, बैग खोलो, रखो जल्दी से, आपकी नेक्स्ट क्लास का वेट हो रहा है, फटाफट करो. तो दिस इज द थिंग कि एवरी पेरेंट शुड टॉक टू द चाइल्ड. जैसे हम क्या करते हैं, जनरली मेरे साथ भी पेरेंट का इंटरेक्शन होता है. आई जस्ट टेक द चाइल्ड, आई हग, मैं शायद उनको बहुत सारी किसेस भी करती हूँ और बड़ा एक वार्म वेलकम देती हूँ बच्चों को. तो आई जस्ट वांट द सेम थिंग विद द मदर्स ऑल्सो. डोंट गो विद द नेगेटिव पार्ट. वी हैव टू स्कोल्ड बिकॉज वी आर टीचर्स. हम डांटते हैं बच्चों को और आगे हमारा हक है. बट डोंट आस्क देम कि मैम ने पिटाई करी. मैंने पेरेंट्स से आई लिसन देम कि मैम ने पिटाई करी. आई डोंट वांट दिस पार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स. सो आई थिंक दैट विल हेल्प मोर टू द पेरेंट्स, टू द मदर स्पेशली. तो ये चीज है कि स्टार किड्स ना केवल स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखता है, बल्कि उनके पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अभी मैम ने आपको पेरेंटिंग एडवाइस दी, तो जो भी छोटी से मिनिमलिस्टिक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन सब का सोल्यूशन हमारे पास या मैम के पास, स्टार किड्स एज अ टीम के पास है. क्योंकि हम एक ऐसे रेशियो में ऑपरेट करते हैं जहां पे 1:12 का रेशियो, 1:13 का रेशियो है, राइट. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हर टीचर के पास, हमारे टीचर्स इतने वेल ट्रेन्ड हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ है जो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स से हमारे साथ है, तो वो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है. उन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको पेरेंटिंग एडवाइसेस बहुत अच्छी मिलती है. वेल, दैट इज एक्चुअली अ ग्रेट, इंडीड अ वेरी नाइस पार्ट ऑफ स्टार किड्स, मैम. One more thing, I just want to confess myself. One more thing. Day before yesterday, a rehearsal was there, and it should be a blunder from my side. I should say the parent, sorry from my core of my heart, it was a blunder done by me. I should not say my teachers. That was a blunder to me, and especially Anupama and Devendra ji, sorry for that, dear. But still, you cooperated me a lot, and because of you people, I am here. So once again, sorry, Devendra ji and Anupama. Great. तो that was it. और मैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे स्टार किड्स के बारे में कि जो हमारे एनुअल डेज होते हैं ना, उसकी हम थीम रखते हैं बचपन, दोस्ती और जिंदगी, खुशी. ऐसे नाम मैंने आज तक कोई एनुअल फंक्शन में ना तो सुने हैं, ना मैंने ये देखा है कि हम जो थीम बेस्ड ज्यादा जाते हैं वो ऐसा, मतलब जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि हम एक स्किट करा देते हैं और हमारे बच्चे का एक डांस होता है, राइट. बट हम यहाँ पे एक शायद मैसेज देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. बचपन में जैसे हमने हमारा रिविजिटिंग आवर चाइल्डहुड. No, again I'll interrupt you. It is not a message to only the kids. It is for the entire people sitting near me. बचपन हम सबके मन में है, हम सभी के दिलों में है बचपन. My father-in-law is sitting with near me. मैं उनके साथ से भी बहुत बचकानी हरकतें करती हूँ, एंड मुझे लगता है वहां भी पापा के मन में भी कुछ ना कुछ बच्चे जैसी हरकतें हैं. एंड सेम विद माय मदर-इन-लॉ आल्सो. मतलब मुझे लगता है हर एक में बचपन है, दोस्ती है, एवरीबडी, नॉट इवन द किड्स. एंड हम सॉन्ग्स जनरली डायरेक्टर सर सॉन्ग्स डिसाइड करते हैं, एंड मुझे लगता है जो आज यहाँ बैठे ना, सारे सॉन्ग्स पेरेंट्स भी गाएंगे, राइट. तो ये जो आपका पुराने गानों का, मैं ज्यादा देखता हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा पुराने गानों पे रहती है. वैसा क्यों आजकल के नए जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं हम वो भी यूज कर सकते हैं, बट पुराने सॉन्ग्स हम ज्यादा क्यों यूज करते हैं? पुराने सॉन्ग्स जो मुझे फील होता है पर्सनली, आई फील कि दे आर वेरी गुड टू गुनगुनाना भी, गुड टू सिंग, एंड वर्ड्स आर वेरी गुड. आजकल के जो गाने जनरली शायद दादा दादी जो भी सब बैठे हैं यहाँ पर, पेरेंट्स भी, दे डोंट वांट कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वी डोंट लाइक कि हम बच्चे वो गाना गाएं. हालांकि दे सिंग, उनको बड़ा अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, बट दिस इज माई ओपिनियन. आई शुड नॉट से टू माई पेरेंट्स, इट इज ओनली माई ओपिनियन कि बच्चे वो गाना कम गाएं तो ज्यादा अच्छा लगता है. सेकेंडली,
all these annual functions are interrelated with the parents, with the students, with my teachers, with my choreographers. ग्रेट, दैट इज रियली कूल. तो मैम आज की थीम मैंने देखी प्यार है, तो प्यार के बारे में आप थोड़ा समझाना चाहेंगे हमें? आपसे मैं पूछना चाहूंगी जय, क्या जो हमने रखा बचपन, दोस्ती, जिंदगी, खुशी, उसमें क्या चीज की कमी है? दैट इज लव. If love is not there, I think the bonding is not at all strong. And it's not like कि love एक लड़का और एक लड़की में होता है. I love my parents. I love my mother, the person who has given me birth. I love my brother. I love my parents. I love you. So प्यार हर किसी से हो सकता है. करेक्ट. सो मतलब आप ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं शायद कि हम जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनसे हम कैसे अटैच हैं. आज बच्चे वही करने वाले हैं. They are going to show the love to the parents. They are going to show the love for the nation, brother, sister. हर एक गाने को they will enjoy. And mind me, after the annual function, they are going to give a big round of applause to the Star Kids family. Am I right, parents? Well, that's really nice, ma'am. And we'll conclude here, guys. प्यार एक एहसास हमारी 14th annual day की थीम है. I hope आप सब उसे enjoy करें. हम डिफरेंट तरीके से आपको प्यार हमारी सराउंडिंग से करते हैं, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अगेन पेरेंट्स, इवन इफ इट्स नॉट योर वार्ड परफॉर्मेंस, मैं चाहूंगा कि आप हमें अपलॉड करें, आप हमारे स्टूडेंट्स को अपलॉड करें, बिकॉज इतनी सारी लाइट्स है, हम स्क्रीन लगाते हैं. मे बी आपका जो बच्चा है, आप एक चीज है, आप ना वेव कीजिए ना रिकॉर्ड कीजिए. वी हैव प्रोफेशनल कैमरामैन, हम उनको अपॉइंट करते हैं. You'll get the link on the YouTube channel. Just sit back, relax and enjoy the feelings. हम आपसे इमोशनल कनेक्ट कराना चाहते हैं, राइट? तो जस्ट एंजॉय कीजिए एंड लेट्स होप कि जो प्यार है that would be a great success. Thank you so much and proceeding for the function. Thank you guys. Thank you.